Yes, beta. Very good morning to all of you. Today we will do exercise of chapter 2nd. First fill-ups are given to you. First fill-up is study of microorganism is known as, so your answer will be microbiology. As you know that study of microorganism is known as a microbiology. Next is the bread dough rises because of the production of carbon dioxide. As you know that in fermentation process carbon dioxide gas is produced. So due to carbon dioxide gas, food material get become fluffy and soft. So answer, second answer will be carbon dioxide. Next is dash are the microorganisms that cause diseases. Disease जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं दैट आर नोन एज पैथोजेंस, दैट आर नोन एज पैथोजेंस. नेक्स्ट इज डैश आर टू केमिकल्स प्रिजर्वेटिव. केमिकल प्रिजर्वेटिव मीन्स विच हेल्प टू प्रिजर्व द फूड. सो योर आंसर विल बी पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, KMS. फुल फॉर्म ऑफ KMS इज पोटेशियम, M से मेटा and S means bisulfite. Why we are taking bisulfite? Because in this case two sulfur molecules are taken, that's why bisulfite, potassium meta bisulfate. Next is sodium benzoate. This is also chemical preservative which is used to preserve jellies, jams and pickle etc. Next is dash is a fungus that cause food poisoning. फूड पॉइजनिंग बेटा किसकी वजह से होती है? ड्यू टू एस्परगिलस. दिस इज अ फंगस. एस्परगिलस इज अ फंगस ड्यू टू फूड पॉइजनिंग अकर्स. इट इज क्लियर टू यू. फिलअप फर्स्ट हमने किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. ब्रेड डो जो राइज हो जाता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हैं दैट आर नोन एज पैथोजेंस. Chemical preservative are potassium metabisulfite and sodium benzoate. Next is a fungus. Fungus is aspergillus that causes food poisoning. Second is matching. First is ringworm. As you know that ringworm is a fungal disease. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? फंगस. Second is clostridium, food poisoning. Clostridium, this is a microorganism due to which food poisoning occur. Next is anthrax. Anthrax is a cattle disease, so its answer will be cattle. Next is lactobacillus. Lactobacillus are bacteria that helps in making curd from milk, so its answer will be curd because lactobacillus bacteria help in making a curd. Last is methane. As you know that methane is biogas reactor. Biogas reactor mean fuel. Methane is a fuel that produce energy, so its answer will be biogas reactor. Next is tick the correct option. The process that help milk to last longer but does not kill all microbes present in it known as pasteurization. As you know that in pasteurization method milk is boiled to kill the microorganism. बेटा pasteurization में करते क्या है? मिल्क को बॉयल करते हैं, उसके बाद कूल डाउन करेंगे. ये प्रोसेस को बोलते हैं पेस्टराइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज डन टू कीप मिल्क फिट और टू कीप मिल्क safe for drinking and it kill all the microbes. Next is rust of wheat is caused by fungus. As you know that rust of wheat is a fungal disease, so its answer will be fungus. Next is medicines containing killed or weakened pathogens and used to prevent infection disease are called vaccine. As you know that vaccine is done to kill or weaken pathogens. Pathogens are the microorganisms that cause disease in plants and animals, and to kill these pathogens vaccine method is used. वैक्सीन मीन्स इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं बेटा? जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस्ड ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल. होस्ट सेल मीन्स जो मेन सेल है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होगी. सो योर आंसर विल बी वायरस. वायरस जो है वो
रिप्रोड्यूस करता है इन अ होस्ट सेल। होस्ट मीन्स मेन सेल है जिसके अंदर वायरस, जिसके न्यूट्रिएंट्स को वायरस लेकर के ग्रो करता है। नेक्स्ट इज अ डिजीज कोज्ड बाय अ वायरस एंड स्प्रेड बाय इंसेक्टेज। Disease caused by virus, so your answer will be dengue. Dengue is a viral disease and it's spread by an insect. Which insect? Mosquito. As you know that dengue is spread by mosquito insect and this is a viral disease. तो इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डेंगू। क्लियर हुआ बेटा? एक बार दोबारा से देखो, मैचिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट मैचिंग आपको गिवन है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म इज अ फंगस डिजीज, सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फंगस। सेकंड इज क्लोस्ट्रीडियम, दिस कोज फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स इज अ कैटल डिजीज। फोर्थ इज लैक्टोबैसिलस, हेल्प इन मेकिंग कर्ड। लास्ट इज मीथेन, मीथेन इज बायोगैस रिएक्टर। नेक्स्ट इज प्रोसेस दैट हेल्प टू मिल्क to last longer but does not kill all the microbes. That means मिल्क की प्रिजर्वेशन के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज पेस्चराइजेशन। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय फंगस। मेडिसिन कंटेनिंग किल्ड और वीकन पैथोजेंस, पैथोजेंस को किल करने के लिए या वीक करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज वैक्सीन। वैक्सीन मीन्स इंजेक्शन। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, वायरस, एल्गी, प्रोटोजो एंड बैक्टीरिया। इन चारों में से बताना है विच प्रोड्यूस इन होस्ट सेल, सो योर आंसर विल बी वायरस। नेक्स्ट इज डिजीज कोज्ड बाय वायरस एंड स्प्रेड बाय इंसेक्टेज, इट्स आंसर विल बी डेंगू। नाउ वी विल डू पार्ट डी क्वेश्चन आंसर। yes, first question is why are virus considered as being borderline between living and non-living things? वायरस चैप्टर रीडिंग में भी किया था बेटा हमने। वायरस जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट मीन्स वायरस कंसीडर्ड एज एट बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Virus shows characteristics of both living and non-living things. If they come in contact of a living organism like plants, animals, bacteria, they grow on them and reproduced. But when they do not reproduce outside an organism, they look like a crystal and can be stored in bottles for many years. So virus are considered as borderlines between living as well as non-living things. बेटा जो वायरस है, वायरस जब किसी लिविंग के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है एंड वायरस लिविंग की प्रॉपर्टी को शो करेगा। बट वायरस जब आउटसाइड होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के, मतलब आउटसाइड अगर वो लिविंग के कॉन्टैक्ट में नहीं है, फॉर एग्जांपल डोर की नोब है या फिर किसी और प्लेस पर, नॉन लिविंग प्लेस पर अगर कोई वायरस प्रेजेंट है तो वायरस किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन लिविंग थिंग की तरह। एंड इट लुक लाइक अ क्रिस्टल, जैसे शुगर या सोल्ट का क्रिस्टल होता है उसी तरह से हमें वायरस ऑब्जर्व होगा। एंड वी कैन स्टोर वायरस इन बॉटल्स ऑल्सो। दैट्स वाई वायरस कम्स इन कैटेगरी ऑफ बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, क्योंकि जब वो लिविंग के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो लिविंग की प्रॉपर्टी को शो करेगा, लिविंग के कॉन्टैक्ट में आते ही वायरस ग्रो कर जाता है। बट नॉन लिविंग के कॉन्टैक्ट में आने के बाद में वायरस ग्रो नहीं कर सकता, तो इसीलिए वायरस दोनों की कैटेगरी में आएगा, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज एन अनएरोबिक प्रोसेस, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अनएरोबिक का मीनिंग क्लियर हुआ बेटा? व्हाट इज अनएरोबिक? अनएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन से प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। And in this process sugar are converted into alcohol and carbon dioxide by the action of microbes is called fermentation. इस प्रोसेस में होता क्या बेटा? शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होगी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग फर्मेंटेशन है क्या बेटा? दिस इज अनएरोबिक प्रोसेस इन विच शुगर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल and carbon dioxide by the action of microbes. Fermentation is useful in the food and drink industries in various ways. Some example are given to you.
अभी आपको ये पूछ रखा है ना, हाउ इज दिस प्रोसेस यूजफुल इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज. फर्मेंटेशन इन बैटर हेल्प इन मेकिंग टेस्टी डोसा. डोसा की फर्मेंटेशन के लिए जो उसका बैटर होगा, जो आप उसका मिक्सचर बनाते हो डोसे के लिए, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है. दैट मीन्स उसको रात को रख देते हैं कवर करके. कवर करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी उसके अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फर्मेंटेशन होगी एंड डोसा का जो बैटर है वो सॉफ्ट होगा. नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन इन डो हेल्प्स इन रेजिंग द डो वाइल मेकिंग ब्रेड एंड केक. ब्रेड एंड केक बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, डो सॉफ्ट हो जाता है एंड रेज हो जाएगा. दैट मीन्स जितना आपने मटेरियल लिया, अगर आप उसको कुछ आवर्स के बाद देखोगे, आफ्टर 4, 5 और 6 आवर्स, व्हेन यू विल ऑब्जर्व दैट इट्स बैटर स्टार्ट रेजिंग, बढ़ जाएगा वो अपने आप से ही. नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस हेल्प इन मेकिंग वाइन. वाइन बनाने में भी हेल्प की जाती है फर्मेंटेशन की. तो दीज आर 3 examples in which fermentation is used. First, fermentation is used for making dosa. Second, to making dough, or you can say for raising dough in bread and cake. Fermentation are also used for making wine. Next, third question is, in the absence of microorganisms, the earth would become a heap of dead plants and animals. Justify this statement. As you know that microorganisms like fungi and bacteria, they are known as decomposers, and they help to decompose the dead plants and animals, and they can take necessary minerals from the dead bodies of plants and animals and get again mixed with soil, and this cycle is again repeated. And if microorganisms are not present, then these dead bodies will get collected on the earth's surface and there will be no space left for us. So microorganisms are very useful for us. It is clear to you beta? अब आंसर देखो क्या गिवन है. When a plant or animals dies, it remains are decomposed by microorganisms. Decomposition is the process through which all the constituent materials of a living beings are sent back to the environment. अभी आपको मैंने बताया बेटा, जो डिकम्पोजर्स हैं वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे किसको, प्लांट्स और एनिमल्स को. प्लांट्स एंड एनिमल्स जब डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन होना, जब प्लांट एंड एनिमल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वो वापस किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल के अंदर. और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो क्या होगा, जो डेड बॉडीज़ है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो कलेक्ट हो जाएगी अर्थ सरफेस पे, तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई भी स्पेस नहीं होगा. तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर बेनिफिशियल फॉर अस. इसलिए बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ वुड बिकम अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स. दैट मीन्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इस पर कलेक्ट हो जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन क्लियर है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल हैं, वो क्या कर रहे हैं, डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी मिनरल्स हैं उनको वापस सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, और जिससे ये नेचर में साइकिल रिपीट होती रहती है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुना ऑब्जर्व्स दैट यील्ड ऑफ वीट, यील्ड मीन्स प्रोडक्शन ऑफ वीट ग्रोइंग इन हिज फील्ड हैज़ रिड्यूस्ड इन करंट ईयर. He gets the soil tested and report confirms the deficiency of one particular nutrient. Accordingly, he is advised to grow peas after harvesting wheat. Name the nutrient found insufficient. बेटा इस पर्सन ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट उसके फील्ड में वीट की जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रही है. तो उसने क्या किया, अपने फील्ड की सोइल को टेस्ट कराया लैब में, जो एग्रीकल्चर लैब होती हैं उस लैब में सोइल को टेस्ट करवाया, तो उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी मिली, जिसकी वजह से जो वीट की प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रही थी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट्स बताना है दैट इज़ फाउंड इनसफिशिएंट, सो आंसर विल बी नाइट्रोजन. वीट की प्रोडक्शन करेंगे तो वीट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेंगे, और जब बार बार सोइल से नाइट्रोजन को प्लांट्स ऑब्जर्व करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं, तो सोइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसके अंदर. नेक्स्ट इज, हाउ डू यू थिंक ग्रोइंग पीस विल हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द सोइल. सोइल को अगेन रिफ्रेश करने में, सोइल को फर्टाइल करने में पीस प्लांट कैसे हेल्पफुल होंगे. एज यू नो दैट in peas plants some bacteria are present that are known as rhizobium bacteria, and these bacteria help to convert nitrogen into usable form, that is in nitrate,
As you know that in atmosphere 78% nitrogen is present, but plants directly cannot take that nitrogen. And some bacteria like rhizobium, these bacteria convert nitrogen into usable form. So pea plant help in replenishing the nitrogen in the soil. बेटा इनको क्या करना चाहिए फार्मर को, अगर एक बार वीट की जब क्रॉप लगाई है तो उसके बाद उसको पी प्लांट, दैट मीन्स जो मटर के प्लांट्स हैं वो लगाने चाहिए, क्योंकि जो पीज हैं, पीज में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब वीट लगाई तो वीट्स की वजह से सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब जब हम पीस प्लांट को यूज़ करेंगे तो वापस राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, मतलब सॉइल फर्टाइल हो जाएगी फिर से। तो इसीलिए वीट क्रॉप के बाद में क्या लगानी चाहिए, पीस प्लांट, बिकॉज पीस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज इट टेक्स लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड इन समर्स एज कम्पेयर टू प्रिपेयरिंग इन विंटर्स। ये कह रहा है बेटा कर्ड को समर्स में प्रिपेयर करने में कम टाइम लगता है जबकि विंटर्स में ज़्यादा। एज यू नो दैट in winters growth of microorganisms are very less, but in summers microorganisms multiply themselves very fastly. So in summers curd will become faster, but in winters curd will take a lot of time. Clear हुआ? अब आंसर देखो क्या गिवन है। Microorganisms reproduced at a faster rate between 20 to 40 degrees Celsius. They reproduced at much slower rate when temperature is below this range. Milk is converted into curd by multiplication of lactobacillus bacteria. This is why it takes less time to prepare curd in summers as comparing to preparing in its winter. बेटा समर्स में टेम्परेचर जो है वो रहता है 24 to 40 या 47 के बीच में। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस, आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर कब रहता है, ड्यूरिंग समर्स, बट इन विंटर्स टेम्परेचर विल बी वेरी लो, नियर अबाउट you can say 5 to 15 degree, and in this temperature between 5 to 15 degree Celsius temperature microorganisms cannot reproduce, माइक्रोऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसीलिए विंटर्स में टाइम कर्ड को बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा और समर्स में टाइम कम लगता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डी पार्ट इज हाउ आर द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड। मलेरिया, as you know that malaria is transmitted by female anopheles mosquito. Next is common cold. How common cold disease transmitted? Through cough droplets in air. एयर में जब कोई पर्सन स्नीज करता है तो स्नीजिंग के वजह से जो ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉप्स एयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं और हेल्दी पर्सन को भी अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज टेटनस. Tetanus disease is transmitted through soil as well as by rusted iron article. कोई भी आयरन आर्टिकल्स है उसकी वजह से अगर आपको कट लग जाता है तो टेटनस डिजीज़ हो जाती है, अदरवाइज सोइल की वजह से भी टेटनस डिजीज़ होती है। नेक्स्ट इज टाइफाइड. टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. अगर आप कोई डर्टी वाटर यूज़ करते हो, अनक्लीन वाटर, साफ पानी नहीं लोगे तो उससे कौन सी डिजीज़ होगी, टाइफाइड. लास्ट क्वेश्चन इज what are antibiotics, how are they produced? As you know that antibiotics are the chemicals that inhibit the growth of harmful microorganisms, or you can say chemicals that stop, inhibit की प्लेस पर आप क्या राइट करोगे, stop, that stop the growth of harmful microorganisms by affecting their life process. They are produced by microorganisms like fungi or bacteria. For example, penicillin and streptomycin. These are antibiotics. एंटीबायोटिक्स क्या होती है बेटा, मेडिसिन जो आप लेते हो, और ये मेडिसिन क्या करती हैं, आपकी बॉडी के अंदर जब कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, ये ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उनको किल करेंगे. एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा, मेडिसिन जो आप ले रहे हो, ये मेडिसिन क्या करती हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करेंगी. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बेनिफिशियल हैं,
और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देंगे। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, लाइक फंजाई और बैक्टीरिया, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इट इज़ क्लियर टू यू? Yes, beta. I think chapter second part D questions you all understand, and today your work is you have to write and learn part D question answer, and learn exercise and do exercise in your book, beta. Thank you and have a nice day.